Hi friends, I am Dr. Dhananjay Singh. Today topic is chemical methods of sterilization. If you are new my YouTube channel, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for more watch videos. To start, chemical methods of sterilization. What is the chemicals method of sterilization? A variety of chemical agents are used as antiseptic and disinfectants. An ideal antiseptic and disinfectant should जो एक आइडियल एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट होना चाहिए उसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होने चाहिए है वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी एंड इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया बोथ वेजिटेटिव एंड स्पोर फॉर्म्स वायरसेस प्रोटोजोआ एंड फंगी act in the presence of organic matters, have a high penetration power and quick action, be stable and effective in acidic as well as in alkaline condition, not corrode metals, be compatible with other disinfectants, not cause local irritants, not be toxic, it absorbs into circulation, be safe and easy to use, and be easily available and cheap. The disinfectant which possesses all the above criteria is yet to be found. The following factors influence the potency of a disinfectant. कौन कौन से फैक्टर है जो पोटेंसी को इन्फेक्ट करते हैं बढ़ाते हैं डिसइंफेक्टेंट को कॉन्सेंट्रेशन टाइम ऑफ एक्शन पीएच टेम्परेचर नेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स. Disinfectants can be divided into three groups: high level disinfectants, intermediate level disinfectants and low level disinfectants. These are three levels. First is high level disinfectants. This effectiveness of high disinfectants may be equivalent to that of sterilization. These disinfectants are used for certain types of endoscopes, cytoscopes and surgical instruments with plastic component which cannot withstand the sterilization procedure such as autoclaving. द हाई जो हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स हैं उसमें हम लोग सर्टेन टाइप के एंडोस्कोप साइटोस्कोप एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग डिसइंफेक्टेड करते हैं जिसे कि हम लोग ऑटोक्लेविंग के द्वारा प्रोसीजर नहीं कर सकते स्टरलाइज. द हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स इंक्लूड ग्लूटाल्डिहाइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड परएसिटिक एसिड एंड क्लोरीन कंपाउंड्स. द हाई लेवल के डिसइंफेक्टेंट्स है ग्लूटाल्डिहाइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड परएसिटिक एसिड एंड क्लोरीन कंपाउंड्स. Intermediate level disinfectants may not be effective against bacteria spore. Hence these disinfectants are used for instrument example laryngoscope fibropotic and endoscopes. The intermediate level disinfectants include alcohol iodophores and phenolic compounds. जो intermediate level के disinfectants हैं वो alcohol है iodophores and phenolic compounds हैं. Low level disinfectants में मेनी ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ऑन एक्सपोजर टू लो लेवल डिसइंफेक्शन. अगर हम लोग लो लेवल के डिसइंफेक्शन करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं. दिस डिसइंफेक्टेंट्स आर यूज फॉर आइटम विच कम इन कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट बट दे डू नॉट पेंट्रेट इनटू टिश्यू. अगर ऐसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि पेशेंट्स के कॉन्टैक्ट में आए हैं पर उसको पेंट्रेट नहीं किया है उसको हम लोग लो लेवल पे डिसइंफेक्टेंट्स करते हैं. स्टेथोस्कोप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इलेक्ट्रोट्रोड्स और एग्जाम्पल्स ऑफ सच आइटम्स. फर्स्ट, alcohol. Ethyl alcohol and isopropyl alcohol are the most frequently used. They act by denaturing bacterial proteins. The methyl alcohol is effective against fungal spore and is used for treating cabinets affected by them. जो इथाइल अल्कोहल आइसोप्रोपिल अल्कोहल है वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है. ये ऐड करते हैं डीनेचरिंग बैक्टीरियल प्रोटीन्स को. और जो मेथाइल अल्कोहल वो इफेक्टिव होता है फंगल स्पोर एंड यूज फॉर ट्रीटिंग cabinet affected by them. Methyl alcohol vapor is toxic and inflammable. Second, aldehyde. Aldehyde example first formaldehyde. It is markedly acetaldehyde sporical dull and varicidal. It is used both as aqueous solution and gaseous form. What is usage of formaldehyde? Preservation of tissues of histological examination, to sterilize bacterial vaccine, to prepare toxoid from toxins, for killing of bacterial cultures, and suspension for destroying anthrax spore in hair and wool. Formalin gas has been described under vapor phase disinfectant. Glutaraldehyde. Second example, aldehyde में glutaraldehyde. It is effective against bacteria including Mycobacterium tuberculosis, fungi, virus including human immunodeficiency virus, hepatitis B virus and enterovirus. It is also kills spore. जो glutaraldehyde होता है वो spores को भी kill कर देता है. Orthophenoldehyde. जो ऑर्थोफेनोल्डिहाइड होता है ओपीए इस चीज़ हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट होता है. और थर्ड हम लोग देखते हैं फिनॉल्स. लिस्टेड द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी फर्स्ट इंट्रोड्यूस यूज फॉर फिनॉल कार्बोलिक एसिड इन सर्जरी 1867.
Certain phenol derivatives like cerols, chlorhexidine, and hexachlorophene are commonly used as antiseptics. जो फिनॉल के डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे क्रिसॉल, क्लोरोहेक्सिडिन, क्लोरिजोल एंड हेक्सोक्लोरोफेन, जो कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक के तौर पे। फोर्थ हम लोग देखते हैं हेलोजन। क्लोरीन एंड आयोडीन आर टू कॉमनली यूज डिसइंफेक्टेंट्स। दीज आर बैक्टीरियासाइडल एंड और इफेक्टिव अगेंस्ट स्पोरिंग बैक्टीरिया एंड वायरसेस। The hypochlorites have a bactericidal, fungicidal, virucidal and rapidly sporocidal action. Iodine alcoholic and aqueous solution is used as skin disinfectant. जो क्लोरीन और आयोडीन होता है वो कॉमनली हम लोग डिसइंफेक्टेंट में यूज करते हैं, और जो बैक्टीरियासाइडल और इफेक्टिव अगेंस्ट होते हैं स्पोर के बैक्टीरिया के वायरस। दी हाइपोक्लोराइड्स और जो होता है वो बैक्टीरियासाइडल होता है, फंगिसाइडल और वायरोसाइडल होता है, जो रैपिडली स्पोरोसाइडल एक्शन करता है। जो आयोडीन होता है अल्कोहलिक, वो एक्वा सॉल्यूशन यूज करते हैं हम लोग स्किन को डिसइंफेक्ट करने के लिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फर्स्ट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 इज इफेक्टिव अगेंस्ट मोस्ट ऑर्गेनिज्म एट कंसंट्रेशन 3 to 6%, while it kills all organism including spore and high concentration 10 to 25%। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है वो स्पोर को भी किल कर सकता है 10 to 25% हाई कॉन्सेंट्रेशन पर। per एसिड इज an oxidizing agent. It is one of the high level disinfectants. It is also used in plasma sterile procedure। जो पर एसिड होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये हाई लेवल के डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर में। थर्ड हम लोग देखते हैं प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन। Plasma refers to any gas which consists of electrons, ions, or neutral particles. The formation of low temperature plasma requires several devices। हम लोग को प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन के लिए हम लोग को एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, इसमें मेनली इलेक्ट्रॉन, आयन या न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। Salts of heavy metals have toxic effects on bacteria. The salts of copper, silver, and mercury are used disinfectant. Mercury chloride, once used as a disinfectant, is highly toxic। जो मर्क्यूरी के क्लोराइड होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है। और सॉल्ट कॉपर में जो मेनली कॉपर, सिल्वर और मर्करी यूज किया जाता है डिसइंफेक्टेंट में, जो सॉल्ट में यूज करते हैं हम लोग। सेवंथ हम लोग देखते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट। सब्सटेंस विच आफ्टर एनर्जी रिलेशनशिप एट इंटरफेसेस प्रोड्यूसिंग ए रिडक्शन ऑफ सरफेस टेंशन आर नोन एज सरफेस एक्टिव एजेंट्स और सर्फेक्टेंट्स। जो सब्सटेंस हम लोग यूज करते हैं एनर्जी रिलेशनशिप में, इंटरफेसेस में प्रोड्यूस जो होता है रिडक्शन ऑफ सरफेस टेंशन में, नोन उसे हम लोग कहते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट्स या सर्फेक्टेंट्स। डाइज, टू ग्रुप्स ऑफ डाइज, एनिलीन एंड acridine dyes have been used extensively as skin and wound antiseptic। जो हम लोग दो ग्रुप होता है डाइज के, एनिलीन डाइज और एक्रिडिन डाइज, जो हम लोग एक्सटेंसली यूज करते हैं स्किन एंड वाउंड एंटीसेप्टिक के रूप में। बोथ आर बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, हाई डाइल्यूशन बट हैव लो बैक्टीरिसाइडल एक्शन होता है। जेंटिन वायलेट एंड एक्रिफेलेमिन आर टू वाइडली यूज डाइज फॉर स्किन डिसइंफेक्टेंट स्पेशली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन्फेक्शन। जो जेंटिन वायलेट होता है और एक्रिफिन होते हैं, दो वाइडली यूज डाइज हम लोग करते हैं स्किन डिसइंफेक्शन में और स्पेशली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में। वेपर फेज डिसइंफेक्शन पे हम लोग मेनली फॉर्मल्डिहाइड के द्वारा दिस इज एम्प्लॉयड फॉर फ्यूमिगेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर्स, वार्ड्स, लेबोरेटरीज। इसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड को फ्यूमिगेशन में हम लोग ऑपरेशन थिएटर्स में, वार्ड्स में, लेबोरेटरीज द्वारा में करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड गैस इज जनरेटेड बाई एडिंग 150 ग्राम ऑफ KMnO4 टू 280 ml formation of 1000 cu। Ethylene oxide ETO, ethylene oxide, it is a colorless liquid with a boiling point of 10.7 degrees Celsius। It is effective against all type of microorganisms including viruses and spores। यह इफेक्टिव होता है सभी प्रकार के माइक्रोऑर्गेनिज्म में जो कि वायरसेस ने स्पोर्स को भी ये किल कर देता है। इट इज़ हाईली पेनिट्रेटिंग गैस एंड इट इज रेडली पेनिट्रेट सम प्लास्टिक। ये इतना हाईली गैस होता है कि ये पेनिट्रेट कर सकता है प्लास्टिक मटेरियल्स को। बीटा प्रोपिकोलोन एसीटोन, दिस इज ए कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ कीटोन एंड फॉर्मल्डिहाइड। ये एक प्रोडक्ट होता है कीटोन और फॉर्मल्डिहाइड का कंडेंसेशन से फॉर्म होता है बीटा प्रोपिलेक्टोन जो होता है। इट इज ए बॉइलिंग पॉइंट एट ऑफ 160 डिग्री सेल्सियस। टफ इट इज ए गैस, इट हैज ए लो पेनिट्रेटिंग पावर, इट इज ए रैपिड एक्शन एंड इट इज यूज्ड इन 0.2%। इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट ऑफ ऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग वायरसेस। टेस्टिंग ऑफ डिसइंफेक्शन, कौन कौन से टेस्ट होते हैं हम लोग डिसइंफेक्शन के? राइडल वॉल्कर टेस्ट, चिक मार्टिन टेस्ट, ग्लेजिस टेस्ट एंड इन यूज टेस्ट। स्टेरिलाइजेशन ऑफ प्रियॉन्स, हम लोग कैसे प्रियॉन्स को स्टेरिलाइज करते हैं?
प्रियॉन्स आर इन्फेक्शन प्रोटीन विदाउट एनी डिटेक्टेबल न्यूक्लिक एसिड। प्रियॉन्स में न्यूक्लिक एसिड तो एब्सेंट होता है, पर ये इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होते हैं इनके पास। दे आर हाईली रेसिस्टेंट होते हैं फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स के से। हीट, दे आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट टू ड्राई हीट एट टेम्परेचर ऑफ 360 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर एंड नॉट बीन फाउंड टू बी इफेक्टिव कम्प्लीटली। हीट के द्वारा इसको एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट होते हैं, ड्राई हीट के द्वारा इसको हम लोग टेम्परेचर देते हैं 360 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटे के लिए, जिससे ये स्टेलाइज हो सकते हैं। केमिकल्स, prions are interactive by sodium hypochlorite 25% available chlorine if treated for 1 hour. They are also sensitive to household bleach phenol 90% and iodine disinfectants। जो केमिकल्स होते हैं प्रियॉन्स में इन्फेक्टिव, उसको सोडियम हाइपोक्लोराइड के द्वारा जो 25% अवेलेबल होता है उसमें क्लोरीन ट्रीट करते हैं 1 घंटे के लिए। ये लगभग सेंसिटिव होते हैं हाउस होल्ड ब्लीच फिनॉल 90% के लिए से और आयोडीन डिसइंफेक्टेंट्स। इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।